Hello and welcome to the YouTube channel of Tathagat IAS. Myself Vishal Jaiva, and I will be dealing Public Administration Unit, that is Unit 5 of Paper 2 MPPSC main syllabus. As we all are aware that the syllabus of MPPSC was changed last year, and few new bits have been added to the syllabus, and one of such bit is Public Administration. The heading of the unit says that administration and management, and there is a syllabus prescribed by the commission regarding the same. Before starting our discussion about the syllabus of administration and management, public administration, we will first discuss whether why this subject was added by the PSC in the first place, why this subject was not there in the previous syllabus, so that we get a slight idea about what to expect from this subject, what to expect from this unit, and how to tackle this particular unit. Beginning that the question which I raised, why this particular unit was added. Some of you might answer this particular question in a fashion that this subject is helpful in administration, uh, which you all are aspiring to become, and this subject particularly is helpful in administration. When you become an officer, this subject will help you dealing with various issues, but not this particular unit. As a public administration as a subject will help, definitely help an officer, help an administrator to do his or her work properly. Why this particular unit of 30 marks is there in the MPPSC syllabus is to get you exposed to the nitty-gritties of administration, to understand the basic of administration, and by understanding the basics, you will be exposed to the uh, what administration is, how administration works, the basic things. That is why this particular unit number 5 has been added to our paper 2. Now, the second question is there, that how this subject can be studied. Why we have discussed this कि why क्यों ये subject add हुआ है. Next is how to study this subject, how to tackle this subject. 30 मार्क का सब्जेक्ट है. 30 मार्क के सब्जेक्ट में क्या हम चीजें कर सकते हैं, तो वो चीजें कैसे करनी है, क्या करनी है, एमपीपीएससी ने हमें ऑलरेडी बता दिया कि 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा. 11 नंबर का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें थोड़ा सा एक हमें एक्सप्लेनेशन वगैरह देना पड़ेगा. अब कैसे पढ़े, तो अगर हम पूरी की पूरी बड़ी किताब वहां पे उठाए एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसमें से पढ़ना शुरू करें, तो बहुत लेंदी और बहुत कंबरसम एक्सरसाइज वहां पे हो जाएगा. इसलिए जितना आपको एक गाइडेंस वहां पे दिया जाएगा इस सीरीज के माध्यम से, वही प्रयास रहेगा कि आपको एक टू द पॉइंट अप्रोच के साथ इस 30 मार्क को कवर किया जाए. अगर आप ये सीरीज पूरी फॉलो करते हो तो आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगी आंसर राइटिंग में, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो चीज है, ये जो यूनिट है, ये आपको आंसर राइटिंग में ही काम आने वाला है. कोई प्रीलिमिनरी वगैरह एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला. तो ऐसे में अगर सीरीज को आप फॉलो करते हो, लेक्चर्स को आप फॉलो करते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स को, तो आपको डेफिनेटली इसकी हेल्प वहां पे मिलेगी. प्रयास ये रहेगा कि नोट्स भी यहाँ पे आपको, जो भी स्क्रीन पे आपके दिखेंगे नोट्स, यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे. जो नोट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो बिट्स हम डिस्कस करेंगे, वही चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे भी प्रोवाइड की जाएगी. साथ ही साथ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में मेरा खुद का प्रयास रहेगा कि आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किया कराए जाए. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दूंगा, और जहां तक पॉसिबल है उनका मॉडल आंसर भी फिर साथ ही में लेक्चर सीरीज में कहीं पे कुछ एडजस्ट करके हम वो भी वहां पे करने की कोशिश करेंगे. तो हाउ वाला पार्ट हमने समझ लिया कि हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 5. उसके बाद कि क्या हम इससे 30 मार्क्स जो हमें दिया हुआ है, क्या हमें 30 मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहां तक ये हमें स्कोर दे सकता है. अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बार कोई पेपर या फिर पहली बार कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से आने वाले, क्योंकि नया यूनिट है. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा पेपर आएगा, क्या नहीं, वो सारे एक प्रकार से तुक्के लगाने वाले. कोई आपको ये नहीं बता सकता, या फिर मैं भी आपको ये बोलूं तो स्टुपिडिटी होगी कि भाई ये क्वेश्चन वहां पे आएगा, ऐसा ऐसा ही पेपर बनेगा, क्योंकि सबके लिए नया चीज है. हम बेस्ट क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अपना जो भी एक नॉलेज है, उसके आधार के ऊपर हम बोल सकते हैं कि ये यूनिट 11 नंबर के हिसाब से रिलेवेंट रहेगा, 5 नंबर के हिसाब से ये भी रिलेवेंट रहेगा. यहाँ तक अपन जा सकते हैं, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम वहां पे फॉलो कर सकते हैं. ऐसे दावे करना कि भाई ये 11 नंबर के लिए डेफिनेटली आएगा, लिख के लो, सारा मेरे नोट से आएगा, ये सब काम में हम पढ़ने नहीं वाले. आपको एक काबिल बनाने का प्रयास वहां पे रहेगा कि 30 मार्क में से आप मैक्सिमम जितना हो सकता है वहां तक आप पहुंचे.
बाकी जो है चीजें वो आपके मेहनत के ऊपर ही अल्टीमेटली डिपेंड करती है। रास्ता हमारा दिखाने का काम होता है, अल्टीमेटली चलना आपको ही होता है उसके ऊपर। ठीक, तो यूनिट 5 पेपर 2 मार्क्स 30, जैसे मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया, 11 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, आपका 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। कुछ इस प्रकार का डिवीजन जो है एमपीपीएससी ने वहां पे प्रिस्क्राइब किया हुआ। 11 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर खासकर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। कारण उसका ये है कि 11 नंबर के क्वेश्चन की जब हम तैयारी करते हैं किसी बिट से, तो 5 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन काफी हद तक उस 11 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में कवर हो जाते हैं। तो इसलिए 11 नंबर के ऊपर फोकस रहेगा। मैं बताते रहूंगा आपको ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सीरीज की कौन सा बिट, कौन सा यूनिट हमें इस यूनिट में से कौन सा सब यूनिट, कौन सा बिट जो है 11 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं। आज का अपना एजेंडा में कि सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी चीज हम जब नई शुरू करते हैं तो सबसे पहले 2 चीजें जानना जरूरी होता है। एक उसमें कि क्या आयोग ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, क्या आयोग हमें डायरेक्शन दे रहा है कि किस डायरेक्शन पे हमने चलना है। सिलेबस से काफी सारी चीजें पता चलती है, हमें बाउंड्रीज हमारे प्रिपरेशन की तय करना हम समझ जाते हैं कि किन बाउंड्रीज में, किन दायरों में, किन सीमाओं में हमें रहकर तैयारी वहां पे करनी है। दूसरा चीज होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, लेकिन as far as unit 5 of the paper 2 is concerned, there are no previous year questions because this unit was added by PSC in last year, and there is no exam till now conducted on this particular unit. ठीक है, तो अपने पास बस क्या है, एमपीपीएससी ने दिया हुआ सिलेबस, बस समझ लेते हैं। थोड़ा सा रूबरू होने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस में एमपीपीएससी क्या दे रहा है और कैसे हम बेसिकली इस सिलेबस को टैकल करने वाले हैं। सिलेबस को उन्होंने ही 4 सब यूनिट्स में बांटा हुआ है, यूनिट 5 को। उसमें से पहला सब यूनिट कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। 2 कीवर्ड्स है। आज ये 2 कीवर्ड्स जो है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इंटरचेंजेबली यूज होते हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा यूज करना एक आमतौर पर ऐसी चीजें वहां पे यूज होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे जरूर है। वही डिफरेंस हम जानने की कोशिश करेंगे इसके मीनिंग, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट पार्लेंस में यूज होता है, क्यों होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक पार्लेंस में यूज होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। अलग अलग जो थिंकर्स है इस फील्ड के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के, इन थिंकर्स का बोलना क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा, डेफिनेशन की है। कुछ जो मॉडर्न थिंकर्स है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन मैनेजमेंट के थिंकर्स ने भी मैनेजमेंट के अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन वहां पे दी है। तो उसी की हम एक बेसिकली एनालिसिस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, और एंड में थोड़ा सा एक डिफरेंस भी जानने की कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में असल में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेचर किस प्रकार का है एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का। नेचर की बात क्या होती है, देखो किसी को भी जब आप पूछते हो कि किसका नेचर कैसा है, किसी को मिलते हो फिर उसके बारे में किसी और से बात करते हो, तो बोलते हो किसी का नेचर बड़ा अच्छा था, उससे जिससे मैं मिला उसका नेचर अच्छा लगा मुझे, या फिर किसी का नेचर खराब लगा। तो नेचर बेसिकली होता क्या है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, जिसके बारे में भी आप वहां पे बात कर रहे हो। ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, किसी कोई व्यक्ति के बारे में भी आप उसका नेचर के बारे में उस चर्चा कर सकते हैं। नेचर मतलब बेसिकली आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो वही हमने एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट के नेचर के बारे में देखना है कि क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी के अंदर थोड़ा सा एक स्कोप के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि ये कहां तक इसका दायरा है, और वहीं से फिर आ जाता है आपका सिग्निफिकेंस वाला तीसरा मतलब तीसरा एक बिट, कि सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, की महत्व क्या है, क्यों पढ़ना है हमने। तो वो जो क्वेश्चन होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढ़ना है, क्या कारण है इसको पढ़ने का, तो हमें जब हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन देखा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिट वाज एडेड, व्हाई दिस यूनिट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस और फॉर पब्लिक इन जनरल और फॉर गवर्नमेंट्स, क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो इस यूनिट के अंदर अब सिग्निफिकेंस में क्या चर्चा होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक जो सामान्य इंसान है, कोई आम जनता है, उस आम जनता के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव ये एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे डाल सकता है, किस प्रकार से उनके लाइफ को इन्फ्लुएंस वहां पे कर सकता है। तो अगर मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे कह दूं कि बर्थ से लेके डेथ तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है, वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में मालूम पड़ता है कि भाई
बर्थ से लेके डेथ तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना एक इंटरफेस रहने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारा कनेक्शन वहां पे रहने वाला है। कैसे मैं इस सेंटेंस को सब्सटैंशिएट करूं, एग्जांपल कैसे दूं? तो बर्थ जब होता है किसी का, तो बर्थ के साथ ही एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट होगी वही कल जाके आपके जो भी कागजात होंगे उस कागजात में लग जाती है। भले ही बहुत लोग के साथ ऐसा भी हुआ होगा, जो व्यूअर्स होंगे आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका एक्चुअल बर्थ डेट कुछ अलग है और जो आपके कागजात है उस कागजात के ऊपर आपका बर्थ डेट कुछ अलग ही लगा हुआ। ऐसी चीजें होती है। लेकिन मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो कौन सी चीज मानी जाती है? आपका जो असल में बर्थ डेट है वो माना जाता है कि जो कागजी बर्थ डेट है वो माना जाता है? तो आंसर सीधा निकल के आता है कि भाई कागजी जो होगा वही चीज वहां पे मानी जाती है। और ऐसी चीजें बहुत आम है, बहुत कॉमन है, बहुत लोग के साथ ये चीजें वहां पे आज की डेट में होती है कि कागजी कुछ और बर्थ डेट और असल में कुछ। तो ये कहाँ पे अपन जा रहे हैं? तो मैं आपको बस बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा में, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका जो भी मतलब एक फैक्ट्स वगैरह होंगे आपसे रिलेटेड, वो बर्थ डेट हो या फिर आपका कास्ट हो, आपका जो भी मतलब बेसिक फैक्ट्स, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है उन्हीं चीजों को महत्व वहां पे अल्टीमेटली मिलता है, ना कि आपका असल में रियल में क्या है। तो इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अपने लाइफ में वहां पे कितना हो सकता है। कोई मान लो परिवार के अंदर किसी की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद अगर वो किसी को अपना नॉमिनी बनाते हैं पैसों के लिए, बैंक अकाउंट वगैरह के लिए, कि बैंक अकाउंट उनका पड़ा हुआ था, डेथ हो गई, अब नॉमिनी कोई है, तो उस नॉमिनी को उनका जो भी बैंक अकाउंट में बैलेंस वगैरह है उसको दिया जाए। जब आप बैंक जाते हैं, आप ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे को नॉमिनी बनाया हुआ है और मुझे आप जो है उनके अकाउंट में जो भी बकाया था, जो भी बाकी था, वो आप मुझे दे दीजिए। तो ऐसे ही बैंक नहीं दे देगी आपको। उसके लिए बैंक क्या मांगेगी? कुछ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स मांगेगी कि जिसके द्वारा ये प्रूव हो सके कि ये जो व्यक्ति है इसका नॉमिनी आप हो और साथ साथ इस व्यक्ति की डेथ भी हुई है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है डेथ के बाद ही शुरू हो सकती है। तो ऐसे में वो डेथ सर्टिफिकेट मांगेंगे, जो कि नगर निगम, नगर पालिका, जो भी जैसे भी स्तर के ऊपर वो जो भी इंस्टीट्यूट होगा जारी किया जाएगा, नगर पालिका, नगर निगम, इनके ऑफिसर्स ये जो भी ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं सारे के सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है। तो मैं बस आपको सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि बर्थ से लेकर डेथ तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मतलब एक इंटरफेस रहता है, कनेक्शन वहां पे रहता है। और इससे हम इसके अलावा और कई कई चीजें हम सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जानेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इस सब्जेक्ट का महत्व कितना है, सब्जेक्ट का दायरा कितना लंबा है, कितना मतलब एक तरीके से वाइड है कि हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छूता है। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। अब जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब सिग्निफिकेंस जानेंगे, अगला रुख करेंगे कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये डेवलप्ड सोसाइटीज में किस प्रकार से काम करता है और डेवलपिंग सोसाइटीज में किस प्रकार से काम करता है। आप अपनी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी एक डेवलपिंग सोसाइटी की कैटेगरी में हम रखते हैं। और जैसे यूएसए की बात करें या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो ये कंट्रीज जो है इनको हम डेवलप्ड कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा रखने का कारण क्या है? कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो एक स्तर है, द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्रीज सच एज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फॉर दैट साउथ एशियन कंट्रीज इन जनरल, इनके अंदर जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, अगर इस पर्टिकुलर सेट को, इन कंट्रीज के सेट को हम अगर कंपेयर करते हैं जर्मनी के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी अंतर देखने को मिलता है, काफी स्टार्क डिफरेंसेस हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। तो अब अगर मान लो यहाँ पे गरीबी है, जितनी गरीबी, जितनी एक भारी मात्रा की गरीबी बोलो, कि जितनी एक्सेसिव पॉवर्टी हमें इंडिया में देखने को मिलती है या फिर साउथ एशियन कंट्रीज में देखने को मिलती है, उतनी बदतर पॉवर्टी शायद हमें जो डेवलप्ड नेशंस है उनमें ना देखने को मिले। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसका मेन एम, सबसे पहला एम ये होता है कि भाई जो डाउन ट्रॉडन है, जो मतलब एक तरीके से शोषित है, वंचित है, उसको पहले वहां पे प्राधान्य दिया जाए, प्रायोरिटी दी जाए, उसके बेहतरी के लिए कुछ काम वहां पे किए जाए। तो ऐसे में भारत के अंदर जो ये गरीब लोगों के लिए उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे, कार्यक्रम आप मतलब अपनाए जाएंगे बोलो, इंप्लीमेंट किए जाएंगे, तो ये इनका नेचर कुछ अलग होगा एज कंपेयर टू द नेचर ऑफ दोस प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, स्कीम्स इन डेवलप्ड नेशंस। तो उसी में हमने थोड़ा सा एक डिफरेंस जानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड सोसाइटी में कैसा रोल प्ले करता है, क्या उसकी मतलब प्रायोरिटीज होती है,
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपिंग सोसाइटीज में क्या प्रायोरिटीज होती है। इस काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हम ये भी जान पाएंगे कि डेवलपिंग सोसाइटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की होती है, किन विशेषताओं के कारण एक कंट्री को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है और किन इंडिकेटर्स के कारण एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। तो ये एक नेक्स्ट वहां पे सब यूनिट आया इसी में। फिर अपना चीज है कि डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है देखिए, ये सब्जेक्ट कोई ऐसा बहुत एंशिएंट सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की बात करते हैं, एक नया टर्म बने उसका इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। कोई भी डिसिप्लिन होती है, जब डिसिप्लिन में इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होती है मतलब क्या कि कोई थेरीज प्रपोज की जाती है, कुछ इंटरलिंकेज अलग अलग थेरीज के बीच में एक ऑर्गेनिक इंटरलिंकिंग करने की कोशिश वहां पे की जाती है। थ्योरी बिल्डिंग करने के बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बात करी जाती है, उसको एक यूनिवर्सल नेचर देने की बात की जाती है कि भाई ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हर जगह पे हर सोसाइटी में अप्लाइड है। ऐसे करके एक सब्जेक्ट वहां पे बनता है। वैसा सब्जेक्ट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, ये कोई पुराना सब्जेक्ट वहां पे नहीं है। 1887 में वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिकल साइंस वीकली में अपना एक ऐसे प्रकाशित हुआ उनका, उस ऐसे के बाद इस सब्जेक्ट के अंदर इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी शुरू हुई। तो अब अगर उस सब्जेक्ट के उस ऐसे के बाद अगर सब्जेक्ट में इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी शुरू होती है तो हम बोल सकते हैं कि 1887 में इस सब्जेक्ट का जन्म हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसी बात करते हैं तो आप काउंटर कर सकते हैं इस चीज को कि भाई जो कौटिल्य के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वो क्या था। या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लो बाहरी कंट्रीज में भी जो ग्रीक सिविलाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन चला बोलो, या फिर कोई भी सिविलाइजेशन इन जनरल, जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन रहे हमारे, और एंशिएंट सिविलाइजेशन में एक प्रक्रिया जो चली, एक प्रशासन जो चला, और प्रशासन फिर किस आधार के ऊपर चला कि अगर आप ये बोल रहे हो कि ये सब्जेक्ट ही नहीं था 1887 के पहले। तो देखिए सब्जेक्ट तो नहीं था, ये तो मैंने सच बोला, लेकिन एज अ प्रैक्टिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस ये एंशिएंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट 1887 के बाद इसके अंदर इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन एज अ प्रैक्टिस ये पुराना है। अब मैं दो टर्म यहां पे यूज कर रहा हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। क्या होता है, कोई चीज जो होती है एक पढ़ने के लिए होती है और उस पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करने की एक चीज होती है कि एक प्रोफेशन की तरह। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीजें, सब्जेक्ट भी है और प्रोफेशन भी है। बस मेरा यहाँ पे कहने का मतलब आपको ये साफ है कि एज अ प्रोफेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी पुराना है, एज अ सब्जेक्ट नया है। उसी यूनिट में चर्चा करेंगे कि कैसे नया था, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ 1887 से लेके 2021 तक, क्या उसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, क्या क्या किन किन फेजेस के थ्रू ये सब्जेक्ट जो है वो गुजरा है, इसकी चर्चा हमने करनी है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब ये बिट पढ़ते हैं तो इसी के साथ लिंक्ड एक बिट है कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि 1887 में जो सब्जेक्ट शुरू हुआ था, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, जो कोर प्रिंसिपल्स थे उस सब्जेक्ट के, जो बिलीफ्स थी, वो कोर बिलीफ्स विद टाइम चेंज हुई है। और आज की डेट में एक एडजेक्टिव वहां पे लगा, जैसे मान लो कि मॉडर्न। क्या मॉडर्न है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्या चीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाती है, उस चीज के बारे में हमने चर्चा करनी है इस पर्टिकुलर सब यूनिट के अंदर। कि आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हमारे गवर्नमेंट का एंडेवर हमें देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एंडेवर देखने को मिलता है कि सिटीजन्स को जो चाहिए, सिटीजन्स के जो नीड्स है, वो नीड बेस्ड पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ये नहीं कि हमें जो सही लगता है, हमें मतलब पॉलिटिशियंस हो, बड़े लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, उनको जो सही लगे वो पॉलिसीज नहीं उतारी जा रही है, बल्कि नीड जो है लोगों की, आम जनता की, और नीड को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज को डिजाइन किया जा रहा है। ये चीज अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ी सी नई चीज है, ये कोई पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। 1947 अपने कंट्री की अगर हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस हमें मिला, और इंडिपेंडेंस आजादी मिलने के बाद क्या हम लोगों को पूछ के पॉलिसीज बना रहे थे, क्या हम लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में? तो सीधा सा जवाब है कि आम जनता को इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा था। ना तो हमारे पास उतने रिसोर्सेस थे और ना ही उस समय पे सरकार का ऐसा कुछ एंडेवर था। लेकिन जैसे जैसे एक समाज, जैसे जैसे एक सोसाइटी आगे बढ़ती है, अवेयर होती जाती है, और अवेयर जब होती है तो वो चाहती है कि हमारा भी पार्टिसिपेशन, हमारी जो नीड्स है वो सरकार के द्वारा सुनी जाए और उस नीड के आधार के ऊपर पॉलिसीज वगैरह बनाई जाए। एक एम्पावरमेंट हर एक समाज वहां पे चाहता है, और टाइम के साथ वो एम्पावरमेंट वहां पे होती जाती है। और उसी एम्पावरमेंट के कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोचेस में क्या क्या चेंजेस आए, और उन चेंजेस का एक जो पीक आज की डेट में चल रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वो हमने इस पर्टिकुलर बिट में समझना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
कि क्या क्या चीजें है प्रिंसिपल्स, नेचर और प्रिंसिपल्स में थोड़ी बहुत चीजें वहां पे सिमिलर आएगी। जब अपन इतनी सारी चीजें पढ़ चुके होंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने में हमें काफी आसानी वहां पे जाएगी। क्या तत्व है, किन आधारों के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब्जेक्ट बना है, इसकी चर्चा बेसिकली हमने इस प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करनी है। देखो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे वहां पे किन किन यूनिट्स के अंदर, सब यूनिट्स के अंदर आनी है। इसका मकसद ये है कि आप सिलेबस के साथ साथ ये समझ पाओ कि स्कोप कितना है, दायरा कितना है, और साथ साथ एक थोड़ा सा एक एक्सपोजर हमें सब्जेक्ट के साथ मिले। कई बार अपना ऐसा एक एटीट्यूड हो जाता है कि कोई बात नहीं, सिलेबस से तो डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस में ऐसा कौन सी बड़ी बात है, सिलेबस में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन वहां पे फंसने वाले हैं। हर चीज जो है क्वेश्चन वहां पे फंसने वाला है, उस नजरिए से हम वहां पे नहीं कर सकते। सब्जेक्ट को अगर समझना है तो पहले सिलेबस को समझना जरूरी होता है। सिलेबस में, सिलेबस के अंदर क्या चीजें बोली गई है, किस प्रकार से, किस ढंग से उसको हमने पढ़ना है, ये चीज हमें पता चल जाती है जब हम सिलेबस को वहां पे डिस्कस करते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि जितने बाकी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जितनी बाकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपका पहला लेक्चर। मैं तो बोलूंगा बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है आपका पहला लेक्चर, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन वहां पे मिल जाती है उस पर्टिकुलर यूनिट को, सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में। नेक्स्ट सब यूनिट देखते हैं। इसके अंदर कंसेप्ट्स, चार नाम, चार पर्टिकुलर कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। एक पहला दिया पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। अब देखिए पावर, अथॉरिटी ऐसे चीजें हैं, ऐसे वर्ड्स है जो बार बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन भी शब्द जो है वो बार बार वहां पे आएगा। एक सेंटेंस इसके बारे में इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा कॉमन सेंटेंस यूज किया जाता है कि अथॉरिटी शैल ऑलवेज कमेंसुरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला मैंने कि अथॉरिटी शैल ऑलवेज कमेंसुरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या कि अथॉरिटी जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि जितनी ज्यादा अथॉरिटी आपको मिलेगी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अथॉरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होगा कि अथॉरिटी आपकी जितनी ज्यादा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। अब मुझे आप सीधा सा जवाब दीजिए कि अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास पूरी पावर्स आपको दे दी गई है, लेकिन उस पावर के लिए कोई उत्तरदायिता आपको नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली नहीं गई है कि आप जो मर्जी कर सकते हो, पूरी पावर्स आपके पास है और आपको किसी को जवाब भी नहीं देना है। ऐसे में एक रेकलेसनेस हमारे अंदर आ सकती है। ऐसे में हमारे अंदर एक बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज हमारे अंदर आ सकती है कि कोई भी कुछ भी कर सकते हैं हम, और हमें किसी को कुछ जवाब भी नहीं देना है। तो ये चीज जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आज की डेट में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं, तो अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस उसका रहना जरूरी है। अगर ये बैलेंस में रहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बैलेंस इंश्योर होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिटीजन्स के नीड्स के अकॉर्डिंग सिटीजन सेंट्रिक रहे, ये चीज भी वहां पे इंश्योर हो जाती है। सिटीजन सेंट्रिक मतलब क्या कि सिटीजन्स की डिमांड क्या है, सिटीजन्स की नीड क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिव है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप की जिम्मेदारी समझता है। ये चीजें तभी इंश्योर हो पाएगी जब आप अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस में रखते हैं। पावर भी वैसा ही एक टर्म है। पावर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो बैलेंस में रहनी चाहिए। जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे रहनी चाहिए। और ये सारी चीजें कौन इंश्योर करता है? तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अलग अलग लॉज बनते हैं, उन लॉज के आधार के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, ये सारा सिस्टम इंश्योर करता है कि किसी को अगर अथॉरिटी दी जा रही है, पावर दी जा रही है, तो उस पावर को, अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस किया जाए। एक और टर्म है डेलीगेशन। सुना होगा शायद आपने कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इस प्रकार का शब्द एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है कि आपके पास पावर दी हुई थी, आपने अपने पास काम, मतलब आपके पास समय का अभाव होने के कारण बोलो, या फिर समय नहीं आपके पास, या फिर आपकी उसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपने जो आपको दी हुई पावर थी वो किसी और को दी, उस आधार के ऊपर किसी और को काम करने के लिए बोला। आपने बेसिकली डेलीगेशन किया अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का। वही चीजें देखनी है कि क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, डेलीगेशन असल में क्या होता है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। बड़ा सिंपल चीज है, सीधे सीधे टर्म्स दिए हुए हैं और आपको सीधा ये 3-3 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं। जो हमने पहला सब यूनिट वहां पे डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, वहां से 11 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंस सकता है। सब यूनिट्स की जब हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली
कौन सा चीज जो है वो 11 नंबर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट सब यूनिट है थेरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स एंड एरिया ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, क्लासिकल थेरीज, मॉडर्न थेरीज, इनकी चर्चा बेसिकली थेरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम करेंगे। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों का समूह होता है, उस लोगों के समूह में, एक ग्रुप ऑफ पीपल में क्या जरूरी चीजें होती है। अगर हम मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मैं और आप मिलके मान लो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम बना दे कल जाके, 10 लोग हैं मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 10 लोगों का कोई ना कोई बॉस होना चाहिए। और बॉस किस लिए चाहिए रहता है आपको, तो बॉस के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है, लीडरशिप वहां पे प्रोवाइड की जाती है, एक यूनिटी ऑफ कमांड वहां पे रहती है कि भाई डायरेक्शन, किन डायरेक्शंस के ऊपर अपना ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वगैरह क्या होंगे, और वो गोल अचीव करने के लिए एक बॉस से, एक अथॉरिटी से वहां पे इनपुट्स आते रहेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है। 10 लोग अपने अपने चीजें वहां पे अपने अपने इनपुट्स दे रहे हैं, तो क्योटिक माहौल हो जाएगा, किस राह के ऊपर चलना है वो चीजें हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझ ही नहीं आएगी, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो डिले होते जाएंगे बोलो, या फिर कभी हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है क्या नहीं, इस यूनिट के अंदर, इस सब यूनिट के अंदर हमने उसकी चर्चा करनी है। एरिया ऑफ कंट्रोल, स्टेप्स एंड एरिया ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होंगे, किस प्रकार से वो कंट्रोल बाकी आपके एम्प्लॉइज के ऊपर, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर लोग होंगे उनके ऊपर कैसा कंट्रोल किया जाता है। कि जैसे हायरार्की होता है, आपको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एक लेवल होती है उसमें, कि इस एक लेवल के ऊपर एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज के ऑफिसर्स, उसके ऊपर थोड़े से और एक्सपर्ट ऑफिसर्स बोलो या फिर एम्प्लॉइज बोलो। तो ये हायरार्की जो होती है, वो हायरार्की इंश्योर करती है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंट्रोल बना के रखे, और हायरार्की ही इंश्योर करती है कि आपकी कमांड जो है, जब आप ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं तो नीचे तक वो फॉलो भी हो सके। उसी का इंपॉर्टेंस हमने इस सब यूनिट के अंदर देखना है। और फिर लास्ट सब यूनिट है कि न्यू डायमेंशंस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम। एनपीएम के बैकग्राउंड में जो है कुछ और 2-3 चीजें नहीं है, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक नया टर्म है जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। ये जो चीज है बेसिकली ये पूरा मैनेजमेंट की बात कर रहा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो मैनेजमेंट के ही नुस्खे, मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन हमें इस सब यूनिट के द्वारा वहां पे मिलता है। और फिर आखिरी में वहां पे दिया हुआ है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा सा फॉल्टी डिजाइंड सिलेबस है मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो पहले ही टॉपिक में वहां पे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो सब यूनिट है पहला अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसमें या एक सब यूनिट था, देखो याद आ रहा होगा आपको, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज। उसी के साथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा जा सकता है, और हम उसी के साथ वहां पे पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट में रोल है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में विकास कार्य में, विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है, क्या भूमिका है, और मतलब क्या इंपैक्ट पड़ता है जब एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होता है उसका डेवलपमेंट के ऊपर, और क्या इंपैक्ट पड़ता है जब एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट होता है उसका डेवलपमेंट के ऊपर। इसकी चर्चा बेसिकली हमने इस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब यूनिट के अंदर करनी है। तो देखिए कुल मिला के 4 सब यूनिट्स जो है, इस पांचवें यूनिट में 4 सब यूनिट्स, और उन 4 सब यूनिट्स की सिलेबस की चर्चा हमने करी कि क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। आप बुक पूछोगे तो मैं बुक कोई वहां पे रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि कौन सी बुक आपने इस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स है, पीएचडी वगैरह करी जाती है, आपका मास्टर्स किया जाता है, बैचलर डिग्री इसके अंदर है। हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमारे लिए बस ये सब्जेक्ट जो है वो 30 नंबर कैरी करने वाला है, 30 मार्क्स कैरी करने वाला है। उसी के हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला कि जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स में कंटेंट आपको मिलेगा, अगर आप वो एक कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर फॉलो करते हैं तो आपको सब्जेक्ट पूरा तरीके से, जो भी यूनिट है यूनिट समझ में आ जाएगा। और जहां तक कंटेंट की बात है, वो कंटेंट आपको हमारे तथागत आईएएस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या आप पूछोगे क्या इनफ रहेगा, कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं समझता हूं एमपीपीएससी के सिलेबस को, वहां तक आपको कंटेंट और आपके वीडियोस मोर देन सफिशिएंट वहां पे होने चाहिए, इसका ख्याल वहां पे रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो भी पहला सब यूनिट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसका मीनिंग क्या क्या डेफिनेशन वगैरह हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।